الحمد للہ الحمد للہ ذی المجد والعلا اللہ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ سبحان اللہ وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أولي البررة التقى والنقى سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سارے حضرات الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ رحمۃ للعالمین واجب التکریم حضرت پیر سید رشید حسین شاہ صاحب اور محترم حضرت پیر سید نعمان حسین شاہ صاحب جماعتی اور جناب شہزاد ناگی صاحب واجب التکریم بزرگوں قابل قدر ساتھیوں، الحمدللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل ہر سال کی طرح اس بار بھی حضرت امیر ملت سینٹر میں منعقد ہو رہی ہیں۔ مجھ خاکسار کو آپ ہمیشہ یاد فرماتے ہیں قبلہ شاہ صاحبان کی یہ کرم نوازی ہے کہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں حاضری کی سعادت انہی کی وساطت اور انہی کی مہربانیوں سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء کرام کے بیانات آپ اتنی بار سن چکے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہیں، اب بھی الحمدللہ ہر روز سنا کرتے ہیں۔ میں نے بھی صرف حاضری لگوانی ہے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ورنہ آپ نے وہ سب کچھ سن رکھا ہوگا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لیکن بار بار سنی ہوئی باتیں بھی کچھ ایسی پسندیدہ باتیں ہوتی ہیں کہ بندے کا جی چاہتا ہے یار وہی سناؤ، وہی سناؤ۔ مقصد اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو سنا رہا ہے وہ نہیں، جس کے بارے میں سنا رہا ہے اس کی محبت کہتی ہے پھر سناؤ اور سناؤ۔ اس لیے یہ ذکر مصطفیٰ ہے جس کے لیے ہم یہاں سارے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے، ذکر مصطفیٰ کرنے سننے کے لیے حاضر ہیں۔ اور یہ ذکر مصطفیٰ ایسا ہے، شان مصطفیٰ کے تذکرے ایسے ہیں، مومنوں کے دل اس سے کھلتے بھی ہیں، باغ بہار بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پہ اس کی منفعت بھی اللہ کا حبیب خلاق عالم سے لے کر اپنے جو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والوں کی یادوں کو سننے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं ग़ज़वा तबूक से वापसी पर। अब ये नाखानी जो है ना, ये ऐसी सूरत में नहीं होती जब बंदा कोई गमगीन हो, दुख मुसीबतें सर पे पड़ी हों। ग़ज़वा तबूक में अल्लाह ने अहले ईमान को जो फतह कामरानी और मुसर्रतें अता फरमाई थी, उधर कामयाबी हुई। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम की पूरी मजलिस में तशरीफ फरमा है। अब यहाँ सारे के सारे खुश हैं। हज़रत अब्बास अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दिल करता है मैं आपकी नात आपकी बारगाह में इंदी मुरीदो अम तादे हाका या रसूल अल्लाह, सरकार मेरा दिल करता है आज मैं आपकी मिदहत आपको सुनाऊं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, क़ुल ला युफ़द्दिदुल्लाहु फ़ाक, सुनाओ क्या कहना चाहते हो, खुदा तेरे मुंह को सलामत रखे। जो कुछ जिक्र मुस्तफ़ा करता है, अल्लाह के महबूब नबी उसको फौरन ही उसका सिला और बदला इस कायनात में अता फरमा देते हैं कि अगले जहान तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैंने सब लोगों को बदला दे दिया है, एक अबू बकर सिद्दीक है जिसको क़यामत के दिन उसका बदला सबको दे रहे हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाते, क़ुल ला युफ़द्दिदुल्लाहु फ़ाका, कहो अब्बास क्या कहते हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा हैं। अच्छा जी, फिर सहाबा फरमाते हमने देखा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हो, इस बुढ़ापे में भी बहुत ज्यादा उम्र होगी लेकिन आपके चेहरे पर हमें झुर्रियां नजर नहीं आई। जो तन बुढ़ापे में आ जाती हैं, हमें याद आता कि मुस्तफ़ा करीम ने अपनी नात का बदला इन्हें यही आता। हजरत नाबिगा जादी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने हुजूर की नात में पूरे 100 शेर लिखे अरबी जुबान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन नात खानों को यही दुआ दिया करते थे, ला युफ़द्दिदुल्लाहु फ़ाका, अल्लाह तेरा मुंह सलामत रखे। नाबिगा जादी फरमाते हैं मुझे भी सरकार ने यही दुआ दी। जब मैंने हुजूर की बारगाह में नात पढ़ी, आमना के लाल ने मुझे भी ये दुआ दी। हजरत कुर्ज़ बिन असलम फरमाते हैं कि हमने हजरत नाबिगा जादी को बुढ़ापे में देखा और सोचे थे कि मुस्तफ़ा की दुआ इस नात खान को कैसे लगती है। हम देखा करते हजरत नाबिगा जादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दांत गिरता। अब होता ये है कि जब बंदे के दांत गिर जाए ना तो ये होंठ अंदर की तरफ चले जाते हैं, देखने वाले को पता चलता है कि बाबा जी के दांत अब कोई नहीं है। अब उससे चेहरे में तगय्युर आता है। लेकिन हजरत कुर्ज़ फरमाते हैं मैं सोचा था कि हजरत नाबिगा जादी का आज दांत टूटा है, अब बुढ़ापा है, उम्र तो गुजर जा रही है, अब यहाँ दूसरा टूटेगा, तीसरा। फरमाते सुभान अल्लाह, मैं निगाह रखता था, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मोजज़े, हुजूर की जुबान से निकली हुई बात सहाबा अपनी आंखों से देखते तस्दीक करते, मुस्तफ़ा करीम की जुबान से जो निकला है हक ही निकला। सहाबा इकराम वो देखते हैं कि सरकार ने जो फरमाया था। हजरत आसम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत कुर्ज़ बिन असलम फरमाते हैं कि मैंने नाबिगा जादी को देखा, दांत निकला, अब मैं देख रहा हूं कि दूसरा भी, क्योंकि जब एक दांत दूसरे का सहारा होता है, एक हिल जाए ना तो दूसरा भी हिलता है, एक निकल जाए तो दूसरे के भी दाएं बाएं बाजू को नहीं होते जो उसको संभालने वाले हों। तो मैं इस इंतजार में था अब दूसरा निकलेगा, लेकिन मुझे आमना के लाल की वो दुआ भी याद थी। मैं देखता क्या हूँ कि हजरत नाबिगा जादी का एक दिन दांत गिरा, दूसरे दिन अल्लाह ने ऐसा ही नया दांत उनको अता किया। फरमाते हमने बुढ़ापे में देखा उनकी उम्र गुजरती जा रही है, दांत निकलता है फिर नया उगाता है और उसमें टाइम भी नहीं लगता, इधर निकला और उधर अल्लाह ने फिर नया पैदा कर दिया। मतलब ये हुआ, खुदा बताना चाहता है। अच्छा जी, हजरत कुर्ज़ बिन असलम फरमाते हैं कि हमने देखा कि जो हजरत नाबिगा जादी के नॉर्मल दांत थे ना, जो अब उगते मुस्तफ़ा की दुआ के सिले में, वो पहले से ज्यादा चमकीले होते।
क्योंकि ये मुस्तफ़ा के सदक़े में हुजूर की दुआ से मिली है, इसलिए फर्क होना चाहिए ना। कहते हैं ना जी अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह ने बहुत दिया है, देता है जरूर, लेकिन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला हो, आम मिलने में और हुजूर के मांगे हुए के दिए में अल्लाह ने बड़ा फर्क रखा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की तरफ से मिलने वाले इनामात को लेते, हासिल करते और खल्लाक़ आलम जल्ल जलालहू, देखिए जी ये दांत जो हजरत नाबिगा को मिल रहे हैं ये कहाँ से आते थे? अगर किसी दुकान से आते तो सब ढंडोरा पीटा जाता, मेरे दांत चोरी हो गया दुकान से, ऐसा नहीं होता था। बात यह है जब मुस्तफा मांगते खुदा खुद अपने खास खजानों से आता, आसमानों से आते। वो बड़ी बड़ी ऐसी हदीस करीमात हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के पास अल्लाह की तरफ से जो इनामात आते वो मांगते हैं हमें मुस्तफा के सदके में मिले हैं। मैंने आपसे ये अर्ज करना है कि जब आसमानों से अल्लाह करीम किसी को कोई नेमत अता करे, चाहे वो चांद की सूरत में हो, चाहे वो जमीन की सूरत में हो, चाहे वो दांत की सूरत में हो, चाहे वो आंखों की सूरत में हो, बड़े बड़े सहाबा हैं जिन्होंने कहा कि हमारी आंखें चली गई थी, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगकर फिर दी और उस पहली से नजर उसमें बहुत ज्यादा थी। ये मुस्तफा का दिया हुआ है। खल्लाक़ आलम जल्ल जलालहू ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदके में जो कुछ भी इस कायनात में दिया, अब मैंने उस आयत करीमा की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। हम खुश क्यों हैं, खुशियां मनाते क्यों हैं, हुजूर का मीलाद मनाते क्यों हैं? खल्लाक़ आलम ने ईद मनाने का एक असूल कुरान में दिया है। क्या जी? अब यहाँ उस बात को समझेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वाकई अहले सुन्नत का हर अमल कुरान और हदीस के मुताबिक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाली हैं, वो आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं हम ये चाहते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें आसमानों से ग़िज़ा, आसमानों से मायदा, आसमानों से दस्तरखान, आसमानों से खुदा हमें खाना अता करे। अब अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ये साथे से बारे में आयत करीमा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे बारगाह में अर्ज करते हैं, आप फरमाते सुनो अल्लाह की जो नेमत आए ना तो उसका बदला भी देना होता है, अल्लाह की तरफ से जो नेमत मिले तो उसका शुक्राना भी अदा करना होता है। तुम कर नहीं सकोगे, कहते या हजरत जरूर करेंगे। अब देखना ये है कि हम बात यहाँ अल्लाह के कुरान से शुरू हुई, शाह साहब ने अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कलाम की तिलावत से महफिल का आगाज किया। मतलब यह है कि सुन्नी जो भी करते हैं महफिल का प्रोग्राम का हर आगाज अल्लाह के पाक नाम और पाक कलाम से होता है।